Hello students. So now we have already completed our chapter, which is metals and non-metals, and now we are just discussing the exercise. So basically, today we are going to discuss exercise, and from tomorrow or day after tomorrow we will start having online test. You will receive online test, and there will be a particular timing. You have to solve those tests and submit it, and after that time you won't be able to submit any answers. So let's see how fast we can complete this discussion on this exercise. I request all of you, don't go to directly, I have given answer to all questions, but don't directly jump to the answer. First, if you can yourself solve it, it will be better. And if you are not able to get the answer, then you can see the answer also. There's not an issue. But first, I will prefer if you yourself are able to, get the answer, or if you are able to understand the answer, it will be much more beneficial for all of you. So let us start our exercise. So first question of your exercise is compare the table. So if you see, the properties of different properties are given. So, and what is the use in everyday life? That's the question. And if you have seen this slide in previously, I had taught you the physical property of metals. There I had told you to do this experiment, where I had told you to just do experiments checking the physical state, luster, any metal which is present at your home. I still remember Pradyumn he sent me the video very nicely he has made, where he was bending a scale. So a lot of things you were doing, like, and you were checking the sonority of some metal, bells, cymbals. So that's how it's like, these are some of the things. If you remember all these experiment which I had done, this is very easy question, that then you have to just tell the ductility which you use everyday life. So the first important thing is the definition of what is ductility and malleability. I hope you know it. So if you know the ductility, it's like more on the wire side. This is the property where you can draw wires from the metals. So that's what ductile. So obviously there are wires every day. We are in use. We charge our cells. We see the electricity. A wire is everywhere. So ductility that is present there. Then malleability, and then conduction of heat. Obviously all the utensils in kitchen. Conduction of electricity. Radharani Patil has done a beautiful experiment on this. I really appreciate that. Then sonority. So it is very nice all of you are doing that experiment. That was the only reason I have given you the experiment, because these all metals you do every day to day life also. So here are the answer. There can be more answers you can write. I have just tried to, like, ductility is about electric wire and cable, malleability is about aluminum foil, which I have told you. Malleable means they can be drawn into thin sheets, and aluminum foil is the best example for that. Even I have told you some like your sweet shops, their silver filing is also given. And then conduction of heat, cooking ware, micro oven, electric press, you can add many others also. Then conduction of electricity, bulb, tube light, lamp, refrigerator, television. And on sonority, cymbals and doorbells. तो ये बेटा, ये सब था आपका, ये कॉमनली हम घरों में यूज करते हैं. और ये अगर आपने ये सब प्रॉपर्टीज ध्यान से इसका एक्सपेरिमेंट किया था घर पे, तो ये बहुत इजी है आपको ये इसका आंसर देना. इट्स नॉट दैट टफ. तो उसके बाद बेटा जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द ऑड टर्म्स आउट इन दिस. तो भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, गोल्ड दिया है, सिल्वर दिया हुआ है, डायमंड दिया है, आयरन दिया है. ये भी अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है तो यू कैन इमीडिएटली गेस इट. अगर आप देखेंगे जो गोल्ड है या गोल्ड सिल्वर है, ये सब क्या है, ये दे शाइन, दे हैव लस्टर, वाइल एज आयरन में लस्टर नहीं है, ज्यादा लस्टर नहीं है जितना गोल्ड, सिल्वर और डायमंड में. इसलिए इसमें अगर ऑड आपको ढूंढना है तो आयरन आएगा. फिर दूसरा अगर आप देखेंगे, डक्टिलिटी दिया हुआ है, सोनोरिटी दिया हुआ है, मैलेबिलिटी दिया है. ये सब किसके प्रॉपर्टीज है? ये सब प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स के. इसमें सिर्फ ब्रिटलनेस है जो मेटल का प्रॉपर्टी नहीं है. फिर अगर आप देखेंगे, फिर तीसरा है कार्बन दिया है, सल्फर दिया है, फास्फोरस दिया है, ब्रोमिक दिया है. अगर आप देखेंगे ये सब सॉलिड स्टेट में है. इवन मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था, सल्फर कैसे बर्न होता है, आपको वीडियो भी दिखाया था. पोटेशियम कैसे बर्न होता है, ऑक्सीजन या उसका कैसे रिएक्शन होता है.
मतलब इफ ओपन एयर में वाटर, तो ये कार्बन भी दिखाया था मैंने आपको, इस कैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना देता है। तो ये सब रिएक्शंस करते हैं, ये कौन है? नॉन मेटल्स है। लेकिन इसमें ये एक ही नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में, ये अगर आप एक्सेप्शनल में, मैंने आपको अलग से एक स्लाइड दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था। फिर दीग्स है, ब्रास है, ब्रोंज है, आयरन और स्टील है। और ये तो अभी आपने रिसेंटली अलॉयज में चैप्टर पढ़ा, अलॉयज का टर्म बताया। और अगर आप देखेंगे अलॉयज में क्या क्या था, ब्रास भी था, ब्रोंज भी था, स्टील भी था। स्टील तो किसका बनता है? आयरन प्लस कार्बन का ही बनता है। तो जो इसमें सिर्फ एक ही है ऑड जो है वो क्या है? आयरन, क्योंकि ये अलग से एक मेटल है, ये अलॉय नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दे ही दिया। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर बोलता है साइंटिफिक रीजन दीजिए। द स्टेनलेस स्टील वेसल्स इन द किचन हैव कॉपर कोटिंग ऑन द बॉटम। अभी तो ये तो बहुत सिंपल है। क्यों होता है कॉपर कोटिंग? क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ क्या है? हीट है। क्यों है गुड कंडक्टर ऑफ हीट? क्योंकि ये मेटल है, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि नहीं? ये देखो मेटल्स क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए उसको कोटिंग किया जाता है ताकि उसको जल्दी से आपका खाना जल्दी बन जाए, आपको फटाफट कुकिंग हो जाए। और फिर बोला कि कॉपर एंड ब्रास वेसल्स आर क्लीन विद लेमन। अगर आपको ये स्लाइड याद है तो आपको ये आंसर बहुत इजी है। मैंने आपको बताया था कि कॉपर को जब वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है? वो बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। और आपने हमको डिस्कस किया था कि ये रस्ट बन जाता है इससे। और अभी हमने ऑलरेडी एसिड बेस का चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, या आपको ज्ञान थोड़ा सा बता सकता हूँ जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा वो सॉल्ट बना देता है, तो सॉल्ट बना देता है। इसलिए जब आप लेमन ऐड करते हैं, तो लेमन जब आप ऐड करते हैं, लेमन क्या है? उसमें साइट्रिक एसिड है और ये बेस है। तो जब लेमन ऐड हुआ किसके साथ? इसके साथ, तो वो क्या बनाएगा? वो सॉल्ट बनाएगा। इस तरह से आपका क्लीनिंग होता है। तो इसलिए अगर आप ये वीडियो में जाएंगे तो आपको समझेगा कि इसका आंसर ये क्यों दिया गया है, क्यों वो क्लीन क्यों हो जाता है फटाफट, क्योंकि वो सॉल्ट बना देता है। और फिर कुछ और भी सवाल किए गए हैं। सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन। इसका तो आपने खुद वीडियो भी देखा है, कैसे सोडियम इमीडिएटली रिएक्ट करता है जैसे वो एयर के प्रेजेंस में आता है। मतलब वो तो एकदम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट करता है अगर उसको आ जाए तो टच में। इतना सोडियम इतना रिएक्टिव मेटल है, इसलिए उसको केरोसिन में ऐड किया जाता है। तो इसका आपने वीडियो भी देखा था कैसे वो बहुत फायर क्रिएट करता है, वो पानी के यहाँ ऑक्सीजन के टच में आ जाए। तो इसका सॉल्यूशंस वही है बेटा, सब जॉट डाउन तो किया है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। स्टेनलेस स्टील किचन हैव कॉपर कोटिंग बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूजिंग कॉपर वेयर any meal can be prepared perfect and gentle way. These are the best pan for cooking and roasting. This is particularly due to the fact that copper has excellent metallic property and it is cheap metal as compared to other metals. और दूसरा, copper vessel get tarnished due to corrosion of copper metal. It forms a layer of copper oxide which is basic in nature. When lemon juice contains citric acid added, it gets neutralization reaction takes place, thus the vessel gets clean. और फिर ये तो आपको मालूम बताया है, सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन इज वेरी रिएक्टिव. इट इज केप्ट इन केरोसिन प्रिवेंट कम इन contact with oxygen and moisture. If this happens, it will react with moist present air and form sodium hydroxide. And this is strongly exothermic reaction of lot of heat generated. It will result out of form fire. तो ये आपने वीडियो भी देखा था इसका, कितना भयानक रिएक्शन सोडियम देता है जब वो पानी या हवा के टच में आ जाता है. तो इसके साथ हम ये और भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, मैं चाहूँगा आप खुद भी उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए. और जब ये चैप्टर डिस्कशन हम कवर कर लेंगे इसका, उसके बाद हम डायरेक्ट अभी हम फिर सीधा इसका टेस्ट लेंगे.